जो कुछ इस पृथ्वी पे पहले होता है, whatever happens on this earth, वो आत्मिक जहां पे पहले होता है। first it happens in the spirit realm. आत्मिक जहां में In the spirit आपके world. विरोध में जो भी प्लान शैतान ने बनाए थे, वो आज बिजली की नाई गिराए जाते हैं यीशु के नाम में। In the spirit world, whatever plans the devil had made against you, they are thrown down in the name of Jesus like lightning. The funeral that devil has planned for you is cancelled today in the name of Jesus. जो funeral शैतान ने आपके विरुद्ध प्लान किया था, वो आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। बस 3 घंटे और हैं। आमेन तो अच्छा है, पर बीच में मत भागना राजमा चावल खाने। आमेन, आमेन। आज का वचन, Today's word, इसको वो कीमती अपने लिए एक मोती की तरह रख लो, क्योंकि ये वचन आपको और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए है। keep it like a precious pearl, because this word is for you and your coming generations. Amen. Amen. Every early death in your family, I decree and declare, is cancelled today by the power and by the blood of Lord Jesus Christ of Nazareth. हर एक समय से पहले मृत्यु जो थी, वो आज यीशु नासरी के नाम और उसके लहू से नाश की जाती है, आपके और आपके घराने के विरुद्ध यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. जो लोग कई बारी जब हम ऐसा करते हैं तो कई लोग लड़ने के लिए आते हैं, वो कहते हैं फिर अपोस्टल्स जल्दी क्यों मर गए? तो मैं आज आपको उसका आंसर देना चाहता हूँ। Sometimes when we do this, people come to fight and they say, why did the apostles die early? I'll give you the answer to that. एक ही चीज है जिससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ। There is just one thing which we are not delivered from. एक चीज है, Just one thing. बीमारी का दाम चुका दिया गया है, श्राप का दाम चुका। एक चीज है, वो है सताओ। Price for sickness has been paid, for curses has been paid, but the कोई आयत नहीं है जिसमें कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया तो अब तुम नहीं सताए जाओगे। नहीं। just one thing we are not delivered from is persecution. There's no verse that says because Jesus was persecuted, you will not be persecuted. तो दो ही तरीके से घर जाना है। So there's only two ways to go home. या तो Either एक व्यक्ति यीशु मसीह की गवाही के द्वारा मारा जाए, या आप अपना जीवन पूरा करो। there's only two ways to go back home. Either someone is killed because of the testimony of Jesus, or they have fulfilled the number मगर of days. ट्यूब लगे हुए आईसीयू के अंदर नहीं, ऐसे नहीं परमेश्वर के लोगों को जाना। But with tubes in the ICU is not the way for God's people और मैं to आपको go. बता दूं, And let me tell आपने you, स्तिफनुस को देख, स्तिफनुस का बाइबल, बाकी अपोस्टल्स का बाइबल में नहीं लिखा, मगर स्तिफनुस को मार्टियर होते हुए हम देख सकते हैं कि एक मार्टियर की मृत्यु कितनी महान और महिमा से भरी हुई है। but the Bible does not give us the death of all the other apostles, but it tells us about Stephen, and from that we can see how great is the death of a saint of God. Amen. स्तिफनुस को जब वो पत्थर मार रहे थे, When they were throwing stones at Stephen, और ये हर किसी मार्टियर के साथ होता है, and this is what happens to everyone who is martyred for the kingdom. उसकी परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी और वो स्वर्ग को खुला देख रहा है और देख रहा है पिता और पुत्र अपने सिंहासन से खड़े हो गए उसे ग्रहण करने के लिए। His spiritual eyes were opened and he saw that the Father and the Lord, the Son, they stood up from their throne to receive him. Amen. So जो कोई मसीह मार्टियर होता है, यानी उसको यीशु की गवाही के देर मार दिया जाता है, उससे बड़ा
उससे बड़ा आदर और उससे बड़ी मृत्यु और कोई नहीं. Every believer that is martyred for the testimony of Jesus, there is no greater honor than that. और कभी मैं अगर आपको प्रकाशित वाक्य सिखाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कैसे एक नंबर है, वो मार्टियर भी कोई भी नहीं हो सकता. ये नहीं आप कहें मैं जबरदस्ती मरूंगा. And I'll teach you when I teach you Revelation. Sometimes there's a number nobody can choose that I will be martyred. Amen. मगर जो लोग भी यीशु की गवाही के द्वारा मारे जाते हैं, But those that are killed for the testimony of Jesus, उनका बहुत महान आदर है. they have a very great मगर honor. उसके अलावा But beyond that, संपूर्ण जीवन, the whole life, दीर्घायु. long life. Amen. Hallelujah. Praise God. अब तो हम काफ़ी लोग गए. जब हम लोग 100 लोग थे, मैंने 100 के 100 को तैयार कर दिया था 2015 में मार्टियर बनने के लिए. 100 के 100 मैंने कहा था 100 के 100 मरेंगे यीशु के लिए. In 2015, I had prepared all the 100 people to die for Jesus. तब यीशु ने कहा नहीं बेटा तुझे जीना है मेरे लिए. Then Jesus told me, no son, you have to live for me. Amen. Hallelujah. अभी बहुत काम करना है. There's too much work. that अपने is- पड़ोसी को बोलो अभी बहुत काम करना है. Tell your neighbor there's so much work left to do. Amen. घर तो सभी जा रहे हैं, Everyone is going home one मगर day. खाली हाथ घर मत जाना. But don't go home empty-handed. खाली हाथ घर मत जाना. Don't go home empty-handed. हजारों करोड़ों आत्माओं को लेकर जाना अपने साथ. Take hundreds of thousands of crores of spirits with you. Amen. बोलो मैं खाली नहीं जाऊंगा. Say, I will not go empty. मैं खाली घर नहीं जाऊंगा. I will not go back home empty. Amen. और जब तक आप पृथ्वी पे हो, एक ऐसा जीवन जियो जो महान महिमा आपके पिता को देता है. And till the time you're on the earth, live a life that greatly glorifies your Father in heaven. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अभी मैं आपको दे सकता हूँ. यशाया 54:17 जिसमें लिखा है कोई भी हथियार आपके विरोध में कार्य नहीं करेगा, मगर खंडन आपको करना है. बाइबल कहती है Isaiah 54:17, no weapon will work against you, but you have to condemn You it. shall condemn it. You, आप कौन उसको कंडेम condemn करेगा उसको? Who will condemn them? You shall condemn it. आप उसको condemn यानी करोगे. अगर आपके शरीर में कोई बीमारी काम कर रही है, आपको उसको श्राप देना है. आपको बोलना है मैं मसीह यीशु के नाम में इसको कंडेम करता हूं और बोलता हूं बीमारी तू मेरे शरीर में नहीं रह सकती. If there's any sickness working against your body, you have to condemn it, saying, sickness, I do not permit you to function in my body in Jesus' name. ओके, जल्दी से क्योंकि फिर हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे. मैं जल्दी से खत्म करूंगा I'll इसको. quickly finish and we'll pray for the sick. हालेलुया. तीसरी कुंजी. पहली कुंजी क्या थी? Third key. What was the first key? क्या थी पहली कुंजी? को लगा ये सब जो बोल रहे हैं वही थी पहली कुंजी. मसीह के वचन को रोज सुनना. Yeah, hearing the word of Christ every day. आमेन. किसके वचन को सुनना? Whose word? रोज मसीह के वचन को सुनना. Hearing उससे the word of विश्वास Christ. पैदा होता है. Every day will produce faith. आमेन. दूसरा क्या था? What was the second thing? मसीह के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको रोज घोषणा करना उसकी. Declaring or speaking the promises of the word of Christ every day. तीसरा, Third, राइट डाउन, लिख लें. टू बिहोल्ड द क्रॉस एवरी डे. हर दिन क्रूस को देखना. हालेलुया. जब आप क्रूस को देखते हैं तो प्रकाशन से देखिए उसको. When you look at the cross, look at it with revelation. यीशु मसीह आज क्रूस पे नहीं है. Today Jesus is not on the मतलब वो cross. क्रूस पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपकी सारी बीमारियां मसीह यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पे ले ली. But when you look at the cross today, look at all those sicknesses you were supposed to get. Jesus took them on the cross. So जब भी आप क्रूस की तरफ देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? So when you जो look at मेरा the cross, कैंसर है वो यीशु के ऊपर डाला गया that cancer which was supposed to affect me was put और on उसके Jesus. कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. And by his stripes I have been made whole. 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस who 2:24. himself bore our sins in his own body on the tree, जिसने स्वयं हमारे अपराधों को अपने शरीर पर उस काट पर ले लिया, that we having died to sins might live for कि righteousness. हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए.
by whose stripes जिसके कोड़े खाने से you were healed. तुम चंगे हो गए थे. बोलो, क्रूस पे मैं चंगा हो गया था. Say, I was healed on the cross. हिंदी में देखो क्या लिखा है. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया. तो किसकी बात हो रही है? Who is it talking about? यीशु मसीह की, जो हमारे पाप को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. और आगे क्या लिखा है? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, इंग्लिश बाइबल कहती है. सो जब भी आप क्रूस की तरफ देखते हैं So तो whenever you आपको look क्या at the देखना cross, है? what do you have to see? अपनी चंगाई. Your healing. आज भी चंगाई क्रूस से बह रही है. Even today, the healing is flowing from the cross. आमेन. बाइबल में एक कहानी है, जब इजराइलियों को सांप ने काट लिया था There is a story in the Bible when और वो सब मर रहे थे. snakes bit the Israelites and they और were मूसा dying. परमेश्वर के पास गया. परमेश्वर ने कहा, इनको बोल पीतल का तांबे का, ब्रॉन्ज, तांबे का एक पोल, एक जो सांप है वो एक पोल के ऊपर लगा के उसको उठाएं. और बाइबल बताती है वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की. And Moses went and asked the Lord, inquired the Lord, and the Lord said, make a brazen serpent on a pole and show it to them and they will live. And that was a picture of the Lord Jesus Christ. हालेलुया. और बाइबल में लिखा है जितने इजराइलियों ने उसकी तरफ देखा वे चंगे हो गए. And the Bible says every Israelite that looked towards it, they were healed. या तो आप अपने ट्यूमर की तरफ देखते रहो, Either you keep looking at that tumor, या आप अपने ट्यूमर से आंखें हटा के अब यीशु के क्रूस की तरफ देखो or you remove your eyes from that tumor and look at the cross of Jesus. और बोलो, यीशु मसीह, And say, आपने Jesus, मेरे लिए कोड़े खाए, You took आप stripes for क्रूस my पर healing. मेरी बीमारी को लिए हुए चढ़ गए और मैंने चंगाई को रिसीव किया you क्रूस. took my sickness on that cross and I have received my healing because of your cross. आमेन. हालेलुया. चौथा एक प्रैक्टिकल है जो आपको करना है, करने तो तीनों हैं, वो है टू टेक कम्युनियन एवरी डे. Fourth, हर रोज प्रभु भोज लेना, हर दिन प्रभु भोज लेना. आपने कितनी गवाहियां यहाँ पे सुनी है कैंसर से You've heard so many कि वो लोग healing. रोज प्रभु भोज लेने लगे. You've heard so many प्रभु cancer भोज healings कोई प्रसाद नहीं है ईसाइयों का. that they were taking communion every day. Communion is not prasad. हाँ, उसके पीछे एक प्रकाशन है. There is a revelation behind it. यीशु मसीह ने कहा, He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Jesus said, जो मेरी देह में से खाता, मेरे लहू में से पीता, उसमें अनंत जीवन है. Amen. So, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. जब भी आप रोज प्रभु भोज लेते हो, आप भविष्यवाणी करते हो यीशु मसीह की मृत्यु की. When you take communion, you declare the death of the Lord Jesus. और आप जानते हैं प्रभु चाहता है कि रोज आप उसको रिमेंबर, उसको याद में रखते हुए, उसकी चेतना में. कम्युनियन एक्चुअली में हमारी कॉन्शियस के लिए, हमारी चेतना के लिए. And do you know that the Lord wants you to remember every day because the communion is actually for your conscience. पहला कुरिन्थियों 11:24 से 26 पढ़ेंगे हम, और हम लोग जल्दी से हिंदी में पढ़ देते हैं इसको. पहला कुरिन्थियों 11:24 से 26. 1 Corinthians 11:24 to 26. 24 to 26. Okay, let me read that in English first. When he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और स्मरण के लिए इसे क्या करो. 25. अभी इसको हिंदी में पढ़ते हैं जल्दी से. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो. क्या करो? मेरे स्मरण के लिए यही किया Do करो. this in my remembrance, he said. आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो. या प्रचार की जगह डिक्लेयर, आत्मिक जहां में आप बता रहे हो मैं नहीं मरूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरी जगह मारा गया. You're declaring in the spirit world that I will not die because Jesus died on my behalf. Amen.
It's very powerful. बहुत शक्तिशाली है। Communion is powerful when you take it by revelation. प्रभु भोज बड़ा शक्तिशाली है जब प्रकाशन से लेते हो आप। उसकी देह तोड़ी गई His body was broken ताकि आपकी देह ना तोड़ी जाए. so that your body would not be broken. It's a place of healing. You come to the Lord's table and you receive healing. ये चंगाई का स्थान है, आप प्रभु की मेज पर आकर चंगाई ले रहे हो उससे। Hallelujah. Last key आखिरी कुंजी is glorify God. प्रभु की महिमा करना। ये बहुत जरूरी है। And this is very अगर आप important. बीमारी में हो, If anyone is in एक चीज से जो आपको हमेशा बच के रहना है वो है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। The one thing you need to be away from is complaining and grumbling. जो मसीह लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, The believers who grumble and complain, वो अपने जीवन में डिस्ट्रॉयर को ओपन कर देते हैं, नाश करने वाले को ओपन कर देते they हैं। open their life for the destroyer. जब इजराइली मरुस्थल में थे और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए, सांप आए और उनको मारने लगे। When the Israelites were in the wilderness and they began to complain and grumble, snakes came and bit them and killed them. देखिए यहाँ अब्राहम के लिए क्या लिखा है, What does this say? रोमियो 4:19 से 22 हम देखेंगे। Romans 4:19-20. रोमियो 4:19 से 22, जब वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। He did not become weak in faith when he did not consider his own body already dead and Sarah's body, Sarah's womb. Okay, Sammy just will read in हिंदी, जिस हिंदी में लगाइए। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। किसकी प्रतिज्ञा पे संदेह किया? Doubt whose promise? शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करो। This is what the devil wants. He wants you to doubt on the promises of God. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। But being strengthened in faith, giving glory to God. कैसे होते हैं आप विश्वास में दृढ़? How do you become strengthened जब in आप faith? परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हो, आप विश्वास में दृढ़ होने लग जाते हो। When you begin to glorify God, you become strong in your जब आप faith. कहने लग जाते हो मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, When you start saying everything is possible for my God. जब आप कहने लग जाते हो ये कैंसर क्या है मेरे परमेश्वर के लिए। What is this cancer before my God? मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, I want to tell you one thing. जैसे यीशु मसीह जुखाम को ठीक करता है, उसके लिए कैंसर भी वैसी है जैसे जुखाम है। Just as Jesus healed cold and cough, similarly it is the same thing for him to heal a cancer. हाँ, हमारे लिए ये बड़ा और छोटा है, For us these can be big or क्योंकि small. हमें लगता है कि थोड़ा सा खराश है तो अदरक का काढ़ा पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। Because for us if you have a little bit कैंसर of, काढ़ा पी के ठीक नहीं होगा, तो हमें So- लगता है आप क्या करें। मगर जब यीशु मसीह देखता है, उसके लिए जैसे वो जुखाम ठीक करता है वैसे वो कैंसर ठीक करता for है। Jesus as far as Jesus is concerned, cold and cancer are the same thing to heal. मेरे पीछे बोलो, बोलो कैंसर तू मेरे यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। Says after me, cancer, you are nothing before my Jesus. आप जानते हैं दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? You know how David defeated Goliath? ऐसे तो हराया, हाँ, पत्थर तो मार के हराया, मगर उसके पीछे एक सीक्रेट है। There is a secret behind it. जानते कैसे हराया? He despised Goliath. उसने गोलायत को तुच्छ जाना। अगर पहाड़ों को उखाड़ना चाहते हो, अपने पहाड़ों को तुच्छ जानने लग जाओ। If you want to uproot your mountains, start despising them. कई बारी शैतान हमारे अंदर क्या डालता है, मैं आपको बताता हूँ। What the devil puts in us कि sometimes. कोई नहीं समझता मेरा दुख कितना बड़ा है। Nobody understands how big my pain is. हाँ, सच कह सकता हूँ यहाँ? हमें लगता है अरे तुम्हें क्या पता मेरे जो बीत रही है, You have no idea जिस what पे I'm going through. बीतती है उसी को पता लगता है। The one going through only तो understands. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, I have a news for you. आप अकेले नहीं हो, You're not the only one. सब पे कुछ ना कुछ बीत रही है। Everyone is going through something or the other. मगर कुछ लोग चुनते हैं योद्धाओं की तरह बोलना, और कुछ लोग चुनते हैं बेचारों की तरह बोलना। But some people choose to speak like warriors and some people choose to speak like victims. आपको क्या लगता है शैतान हमारे विरोध में नहीं आता? What do you think? The devil doesn't come against us. अरे वो तो मौका तलाश रहा है, He's waiting for a chance. वो तो और आएगा। He'll try more. हम कहेंगे आ, He'll say, come. लहू का बाड़ा है हमारे चारों। There's a covering of his blood around us.
Amen. Amen. So शैतान आपको क्या बताना चाहता है? What does the devil want to tell you? एक चीज ध्यान से सुनिए. Hear carefully. इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. I deserve this sickness. Take this one thing out of your being that मैं लायक हूँ इस बीमारी के. Or some people think because I did that, that's why God allowed this in my life. कि मैंने कुछ किया था इसलिए परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये होने दिया है. अरे वचन क्या कह रहा है? तुमने अलाउ किया भाई. परमेश्वर कह रहा है मैंने नहीं अलाउ किया, तुमने अलाउ किया. The word is saying you have allowed it. I have not allowed it. पढ़ा ना आपने वचन? Did you read? Whatsoever you will allow, God will allow. जिस किसी बात की तुम इजाजत दोगे परमेश्वर भी इजाजत देगा. जब बीमारी आपने कहा नो, When sickness comes you say no. तो स्वर्ग भी कहता है नो. The heavens also say no. अधिकार किसको दिया है उसने? Who has he given authority to? आपको दिया है To अधिकार. you. Amen. सो बोलो ये बीमारी मेरे यीशु के लिए कुछ भी नहीं है. Say this sickness is nothing for my Jesus. अरे जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, He who was in the grave for 4 years. अगर 4 यीशु days. उसको जिंदा कर सकता है, If Jesus could bring him back to life. आज अपनी बीमारी को तुच्छ जानो. Despise your sickness today. क्या करो? What do you have to do? बड़ा मत Despise. करो, Don't make it big. तुच्छ जानो. Make it small. Despise it. दाऊद ने कैसे? गोलियत कितना बड़ा है, Goliath was so big. बाकी पूरी इजराइल की आर्मी डर रही है The उससे. entire Israel army is अरे afraid. ये who is this uncircumcised Philistine? He's saying कौन है खतना रहित फिलिस्ती? हाँ, और टीनेजर था डेविड. आपको पता है उस समय में? David was a teenager at that time, you know. आई डोंट नो 14 साल 15 साल Maybe he 16 was साल. 14, अब वो डंडा लेके जा रहा है उसके. He's going to him with a stick. गोलायत ऑफेंड हो गया, कह रहा मैं कुत्ता हूं जो तू डंडा लेके आ रहा है मेरे पास. Goliath got offended. Am I a dog that you are bringing a stick to me? दाऊद को पता था उसका परमेश्वर कौन है. David knew who his God is. क्या आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? Do you know who your God is? क्या आपको पता है आज आपका परमेश्वर कौन है? Today, do you know who your God is? आज पवित्र आत्मा की सामर्थ कैंसर के सर को कुचल डालेगा इस जगह में. Today, the power of Holy Spirit will crush the head of cancer in this place. आमेन. खड़े हो.